Hi everybody. Today we are going to study about differential equations. Last classes we already discussed about derivatives and integrations, successive differentiations, all about this. Today we are going to discuss about the important topics differential equations. First of all, we have to know that what is this differential equations. An equations that involves differential or derivatives is known as differential equations. That means what? A equation will be divided by equation, we know that. That means any equations that involves derivatives or differentials, that is known as differential equations. Just example here I will given that dy by dx plus 3y equal to x. It is an example of a differential equations. Why? Because in this case dy by dx will be present here and derivative will be present here and equation will be divided a equations, so it will be known as differential equations. You know about the differential equations. Now there are many types of differential equations. From them, one is the ordinary differential equations, other is the partial differential equations. First of all, we know that what is ordinary differential equations. तो पहले हम लोगों को पता करना चाहिए व्हाट इज डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस. तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोला जाता है वो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे. तो देखो, so according to definition we are going to, when an equation contains derivative with respect to a single independent variable is called the ordinary differential equations. Means we know that from the above dy by dx means this x is known as independent variable and this y is known as dependent variable. This x is known as independent variable, this y is known as dependent variable. That means in which equations there will be a single independent variable, here x will be present and here x will be present. Here a single independent variable will be present. That type of equations is known as ordinary differential equations. And y is the dependent variable, here y is the dependent variable and this x is known as the independent variable. In both cases x is a single independent variable, in both cases in this case also x, in this case also x. So this type of equation is known as ordinary differential equations. Other example is dqy by dx cube plus dy by dx का whole power 5 equal to e to the power 3x. It is also a ordinary differential equations. Why? In this case also single independent is x in both cases. In this case also x, in this case also x will be present. And this y is known as the dependent variable. This y is known as the dependent variable. If in this case this will be x, this will be y, then the independent variable will be different, and that type of equation will be known as the partial differential equation, which will be study now. सिंपल से बोलने से दोनों का अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम होता है और एक ही होता है तो उसको बोला जाएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलग अलग हो गया तो उसको बोला जाएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. समझ में आ गया? इसमें तो अभी समझ में आ गया जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे हम लोग किसको बोलेंगे. मीन्स जिस इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर 1 से ज़्यादा हो गया तो उसको बोला जाएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. In case of more than one independent variable involved in the equations, that type of equation is known as partial differential equations. Okay, मतलब जिस इक्वेशन में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर प्रेजेंट हो गया उस टाइप ऑफ इक्वेशन को बोलेंगे हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. देखो यहाँ पर तो है x एग्जाम्पल x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू एन यू. यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है बट यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है. दोनों अलग अलग हो गया तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन को बोला जाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. ये वंस विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन होगा, वंस विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन होगा. अलग हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंट हो गया. तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन को बोलेंगे हम लोग
partial differential equations. We know till now we know differential equations, ordinary differential equation and partial differential equations. Now we know about order and degree of the differential equations, which will be most important for the semester examinations. In successive differential we study about order. Already we study about order. Why? dy by dx इक्वल टू, हम लोग को देखो ये जो y फंक्शन है तो डिफ्रेंशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, वंस हो रहा है डिफ्रेंशिएट, और एक बार होता है डिफ्रेंशिएट उसको बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर, और इसको हम लोग वहाँ सक्सेसिव डिफरेंशियल में लिखते थे y1 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स को बोला जाता है, मतलब y फंक्शन विल बी डिफ्रेंशिएटेड ट्वाइस, दो बार उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। वंस हम लोग निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, अगेन निकालेंगे फिर डी बाई डी एक्स, अब यहाँ पर जो लिखा हूँ मैं डी बाई डी एक्स अब डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशियल में क्या लिखते थे y2 भी लिखते थे। तो ये हो गया उसका फर्स्ट ऑर्डर, ये हो गया इसका सेकेंड ऑर्डर, इसको ऑर्डर बोला जाता है। जैसे कि हो गया फंक्शन, सपोज y इक्वल टू एक्स क्यूब एक फंक्शन है सपोज, इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो गया 3x², उसको सेकेंड ऑर्डर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी बाई डी एक्स अब डी वाई बाई डी एक्स, देन वी गेट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, व्हेन वी डिफ्रेंशिएट दिस वैल्यू ट्वाइस वी गेट 6x। ओके, तो दिस अगर इसको फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं तो अगर हम लोग फिर करेंगे उसको डी बाई डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो इसको बोला जाएगा, वो हो जाएगा y3, और इसका हो जाएगा, इसको सिंपली क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पर डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब, तो इसका हो गया ये ऑर्डर 3, समझ हो गया। और डेफिनेशन में पता होता है, देखो द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, जितना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जितना बार डेरिवेटिव करेंगे उसको बोला जाएगा ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव सिंपली। द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन इट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। जो सबसे बड़ा ऑर्डर होगा, डिफरेंशिएशन सबसे बड़ा ऑर्डर होगा, वही होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। जैसे कि हो गया देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 2, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू हो गया, ऑर्डर हो गया 3, डी 5 वाई बाय डी एक्स 5, इसका हो गया ऑर्डर 5, लाइक दिस। तो जो सबसे बड़ा ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, वही होगा उसका ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। Now we have to know about degree. This is the order completed. Now we have to know the degree. The degree of a differential equation is the highest integral power of the derivatives that determines the order of the equations. जो डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग जिसका ऑर्डर निकालेंगे, जो हाईएस्ट ऑर्डर हो गया है, उसका हम लोग होल पावर चेक करेंगे, उसका हम लोग होल पावर चेक करेंगे। देखो, द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट इंटीग्रल पावर ऑफ द डेरिवेटिव दैट डिटरमाइंस द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशंस। सिंपल से हम लोग को सोचना है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ये सपोज एक एग्जाम्पल है, वो यहाँ पर पावर है, इसका ऑर्डर है 3, यहाँ पर ऑर्डर है इसका 1, बड़ा ऑर्डर कौन सा हो गया, ऑब्वियसली 3। तो जो बड़ा ऑर्डर हुआ है उसका ही हम लोग इंटीग्रल पावर को चेक करेंगे। इसका इंटीग्रल पावर कितना है, अभी 1 है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर होगा 3, डिग्री होगा 1। मैनी स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ऑर्डर 3 डिग्री 5, ऑर्डर 3 डिग्री 5, जो कि होता है एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो हम लोग को पहला क्या चेक करना है, किसी भी अगर क्वेश्चन हमको दिया है तो पहले हम लोग को ऑर्डर को चेक करते हैं। पहले ऑर्डर चेक करने के बाद जो जिसका ऑर्डर हाईएस्ट होता है उसका हम लोग इंटीग्रल पावर को चेक करते हैं। ऐसा कि नहीं कि किसी का इंटीग्रल पावर 6 है लेकिन ऑर्डर 2 है, तो ऑर्डर 2 के ऊपर जो पावर होगा वही होगा उसका डिग्री। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन दिया हूँ तुम लोगों को, मुझे दिखाना गुरु क्लासरूम में। देखो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखो फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। यहाँ पर सिंपली क्या होगा, देखो ये जो रूट ओवर है, यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का रूट ओवर है। जो रूट ओवर है साइड चेंज होता है तो क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होगा कि नहीं। अब ये जो प्लस डी वाई बाई डी एक्स है, इधर साइड चेंज होगा तो क्या होगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पर ऑर्डर भी 2 होगा, डिग्री भी 2 होगा।
समझ आ गया? तो अगर किसी क्वेश्चन ऐसे रूट ओवर फॉर्म में होता है तो उसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद या हम लोग को फाइंड करेंगे उसका ऑर्डर एंड डिग्री। कुछ क्वेश्चन है जो तुम लोग करोगे, देखो फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस dy बाई डी एक्स प्लस इक्वल टू एक्स। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स का पावर 5 इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल 4 प्लस 5 इक्वल टू 0 डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 5x। All this type of question will be important. Okay, do the work. For today this will be completed.